little learners, welcome to EduVibe, the vibe of smart education. So I know class 9 children are very excited to know कि आज अंजना मैम आपके लिए क्या लेकर आई हैं. And I remember previous topic आपने बहुत अच्छे से समझा था और मुझे मालूम है आपने वो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया. So now moving ahead with the journey of grade 9. Chapter 1 we are starting with number system part 2 और इस part 2 में आपके पास आ गया 1.2 that is irrational number. So you remember हमने previous video में सीखा था कि rational number की families में कौन कौन से numbers आते हैं. जल्दी से recall करेंगे. Yes, natural numbers थे, then whole numbers थे, wonderful. Integers भी थे, very good, thumbs up for you. एंड उसके साथ क्या था, कुछ फ्रैक्शंस थे, कुछ पॉजिटिव फ्रैक्शंस, कुछ नेगेटिव फ्रैक्शंस. एंड नाउ हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर नंबर लाइन के ये सारे नंबर हटा दिए जाएं तो वहां पर क्या बचेगा, और आपका आंसर मिला irrational numbers. We are going to reveal the secret in front of you और हम पढ़ेंगे कि ये irrational numbers कौन से होते हैं. So talking about irrational numbers, we saw in the previous session कि हमने rational numbers के बारे में समझा था और rational numbers की family में हमने बहुत सारे numbers पढ़े थे जो अभी discuss किए हैं. And now we are going to talk about those numbers जो rational number की family में नहीं आते और उन नंबर्स को कहा जाता है irrational numbers. तो irrational numbers कौन से हुए, जो नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, उन नंबर्स को हम हमेशा बोलते हैं वो irrational numbers हैं. और ये irrational numbers कहाँ से इंट्रोड्यूस हुए, ये इंट्रोड्यूस हुए ग्रीस से. There was a great mathematician and philosopher, उसका नाम था Pythagoras, and he discovered कि कुछ और है नंबर लाइन में जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं, और वो कुछ और क्या है वो Pythagoras ने फाइंड किया. That was irrational numbers. So a big clap for Pythagoras from Greek who helped us long back in 400 BC, और उन्होंने ये सीक्रेट रिवील करने की कोशिश की कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखे जाते हैं, एंड दीज नंबर्स आर कॉल्ड irrational numbers. Now we are going to learn more about irrational number. Let us formally define these numbers. A number S is called irrational if we cannot write it in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Children, you already know कि दो numbers अगर हमें दिए हैं उनके बीच में countless infinite number of rational numbers exist करते हैं, and it turns out to these infinite irrational numbers too. तो irrational numbers भी infinite होते हैं जो दो numbers के बीच में exist करते हैं. बहुत ही interesting story है, आप enjoy करेंगे. That is, अगर मैंने लिखा √2, √3, √5, या कई बार हम decimals में भी numbers को express करते हैं. तो अगर मैंने लिखा √2, √3, ऐसे ही √5, √7, या मैंने लिखा पाई, और बहुत बार हम इस irrational numbers को decimals की फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं. जैसे यहाँ हमने लिया 0.10, 110, 111, 4 times 10, और यहाँ पर क्या कुछ सिमेट्री आपको दिख रही है, हम ये सब चीजें आगे डिटेल में पढ़ेंगे. That what are these all numbers about? So moving ahead, so here we have a remark. Recall that when we use a symbol, ये कौन सा symbol है, square root का, we assume that it is a positive square root of a number. जैसे हमने लिखा square root of 4 क्या होगा,
2. Square root of 9, what do you get? We get 3. What's the square root of 16? हमने grade 8 में पढ़ा था. Yes, that's 4. Though both 2 and minus 2 are square root of 4. क्यों? क्योंकि अगर मैंने 2 का स्क्वायर लिखा तो मुझे 4 मिलेगा. इसी तरह अगर मैंने -2 का स्क्वायर लिखा तब भी मुझे -2 मल्टीप्लाई -2 4 मिलेगा. दैट मीन्स स्क्वायर रूट 4 की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, एक पॉजिटिव 2, एक नेगेटिव 2. एंड सम ऑफ द इर्रेशनल नंबर्स which are listed above are familiar to you. जैसे हमने √2 लिखा, √3, √5, √7, √15 and you have come across many square roots. ये जितने भी स्क्वायर रूट नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर कैलकुलेट नहीं कर सकते. जैसे अगर हमने लिखा स्क्वायर रूट 4 तो उसकी हमें वैल्यू मिल गई. क्या वैल्यू मिली? पॉजिटिव 2 या नेगेटिव 2. इसी तरह अगर हमने स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखा तो हमें उसकी परफेक्ट वैल्यू मिल गई. लेकिन उसके बीच के जो नंबर्स हैं, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, देन वी हैव स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7 एंड स्क्वायर रूट 10. ये सारे नंबर्स आपके इर्रेशनल नंबर्स कहलाए जाते हैं. एंड प्रूफ्स ऑफ इर्रेशनलिटी, कि वो आपके इर्रेशनल नंबर क्यों हैं, ये सब हम आपके नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे ग्रेड 10 में. एंड अगर हम पाई की बात करें, ये पाई है, इट वॉज नोन टू वेरियस कल्चर्स फॉर thousands of years. It was proved to be irrational by Lambert and Legendre only in later 1700s. और यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर मैंने एक नंबर लिखा 0.1011011110 और ये एंडलेसली नंबर आगे बढ़ता जा रहा है, तो हम इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये इर्रेशनल नंबर है, और उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? So this is all we are going to learn here. So are you ready for the journey? और इसी बात पर जल्दी से लाइक बटन भी आप प्रेस कर दो and follow EduVibe. Then let us return back to the question raised at the end of the previous session. तो आपको याद है हमारे पास एक बैग था और उस बैग में हमने नेचुरल नंबर्स डाले थे, फिर 0 ऐड किया था, फिर कुछ इंटीजर्स डाले थे, फिर कुछ फ्रैक्शंस भी डाले थे और इस बैग को नाम दिया था. क्या नाम दिया था? रैशनल नंबर्स का. नाउ इफ यू पुट ऑल इर्रेशनल नंबर्स इन दिस बैग, मेरे पास बहुत सारे इर्रेशनल नंबर्स भी हैं और हमने उन सब इर्रेशनल नंबर्स को भी इस बैग में डाल दिया, तो ये फैमिली एक बड़ी फैमिली हो जाएगी. इस फैमिली को बोलेंगे फैमिली ऑफ रैशनल नंबर्स प्लस फैमिली ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, और इस फैमिली का एक नया नाम हो जाएगा, दैट इज कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स. एंड हम इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं. यू हैव टू रिमेंबर that every real number is represented by a unique point on a number line. Also, every point on a number line represents a unique real number. And that's why we call a number line as real number line. तो आपकी एक नंबर लाइन जो ड्रॉ होती है, उस नंबर लाइन में उसमें जितने भी नंबर्स होते हैं, दे बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ रियल नंबर लाइन, चाहे वो रैशनल नंबर होंगे या फिर वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट two great German mathematicians, that is Cantor and Dedekind, who showed that corresponding to every real number there is a point on a real number line, and corresponding to every point on a number line
there exists a unique real number. That means अगर आप एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं जहां सेंटर में 0 है, आप इसका कोई भी पॉइंट पिक करेंगे, कोई भी पॉइंट, चाहे राइट साइड में चाहे लेफ्ट साइड में, और ये लाइन एंडलेसली दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड होती है, तो कहीं पर भी आप पॉइंट लगाएंगे तो वो पॉइंट कोई ना कोई रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. इट कैन बी रैशनल और इट कैन बी इरैशनल नंबर. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें यहां मिली है. नाउ वी कम टू लोकेटिंग द पॉइंट ऑफ इरैशनल नंबर. तो एक एग्जांपल है हमारे पास, लोकेट स्क्वायर रूट 2 ऑन अ नंबर लाइन. तो हमने नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट 2 को लोकेट करना है. बहुत ही इजी मेथड है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन OA ऑफ 1 यूनिट. It can be 1 centimeter, it can be 1 inch, it can be 1 meter also as per your choice. और यहाँ पर आप एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे. This square shows OABC and each side of this square is 1 unit. अब आप इसका डायगोनल ज्वाइन करेंगे OB. तो ये जो डायगोनल होगा ये स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा. कैसे? बिकॉज यहाँ पर ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बना है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में दिस इज 1 एंड यू से द वैल्यू ऑफ OB विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 square plus 1 square according to Pythagoras theorem. That comes out as square root of 1 plus 1 और हम इसको लिखते हैं square root 2. So it's very easy and now we move ahead and we are going to draw it on a number line. कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की. इस लाइन पर हमने पॉइंट 0 लोकेट किया और इस पॉइंट से हमने 1 यूनिट लाइन ड्रॉ की, मार्क लगाया, दैट इज OA. तो ये OA आपकी 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब पॉइंट A से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड दिस परपेंडिकुलर इज ऑल्सो ऑफ 1 यूनिट. यहां पर अगर हमने OB को ज्वाइन किया तो अभी हमने स्क्वायर ड्रॉ करके देखा था, दिस OB एक्चुअली रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 2, राइट. तो यहाँ पर ये OB आपका स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. आपने कंपास को यहाँ पर रखा, OB की लेंथ को मेजर किया और B से पेंसिल को नीचे लेते हुए आ गए और यहाँ पर लेकर आए. सो डू यू ऑब्जर्व कि ये OB और ये OP क्योंकि कंपास से मेजर होकर नीचे आ रहा है, दैट मीन्स दीज आर इक्वल, क्योंकि एक सर्कल का रेडियस बन गए हैं, राइट. सो वी से ये OP जो लाइन है ये स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट कर रही है. सो इजी एंड आई बिलीव आपको ये समझ आ गया. नाउ मूविंग अहेड वी से ये OP जो लाइन है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2. एंड नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन. एक और एग्जाम्पल करते हैं. Now we come at example number 4 और example 4 है you have to locate square root 3 on a number line. अभी हमने square root 2 को locate किया था, उसी को हम आगे extend करते हैं. That means ये square root 2 जो हमने last example में बनाया था उसके आगे चलने के लिए from this point B हमने एक और perpendicular line draw की which is perpendicular to OB. इसके perpendicular ये line and इस line की length हम ले रहे हैं फिर से 1 unit. So what do you get? This is square root 2 and this is 1 unit. अब देखते हैं square root 2 का square plus 1 का square और इस पूरे का स्क्वायर रूट बना और वो रिप्रेजेंट हुआ इस लाइन OD से, बिकॉज दिस इज अ राइट ट्राइंगल और इस राइट ट्राइंगल के बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बन जाता है हाइपोटेन्यूज, राइट. सो वी आर गेटिंग स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच कम्स आउट एज स्क्वायर रूट 2 प्लस 1. रूट 2 का स्क्वायर बना 2 और 1 का स्क्वायर 1 एंड दैट्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 3. और इसलिए हमने बोला ये लाइन जो OD है
that comes out as square root 3. अब इस पॉइंट को एक्चुअली हमने यहाँ नहीं छोड़ना, बट वी हैव टू शो दिस पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन. तो क्वेश्चन यहाँ फिनिश नहीं होता. अब हमने फिर से कंपास को लेना है, पॉइंट O पर रखकर उसकी पेंसिल को लिखना है, यहाँ पर पॉइंट D पर रख देना है एंड पॉइंट D से डॉटेड लाइन ड्रॉ करते करते तब तक नीचे आना है जब तक वो आपकी इस लाइन को टच नहीं करता, राइट? और ये पॉइंट Q पर टच कर रहा है. सो वी से दैट दिस OQ which is equal to OD and it represents root 3. So point Q, ये जो हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है, ये root 3 को रिप्रेजेंट कर रही है. Understood? And this way we can represent any number on a number line. और अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है. फर्स्ट इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि हमने पढ़ा है रियल नंबर की फैमिली में सारे रैशनल और सारे इरेशनल नंबर्स आते हैं. नेक्स्ट इज एवरी पॉइंट on a number line is of the form root m where m is a natural number. अगर हम बात करते हैं every point की, तो every point हमेशा root m नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी real number line के ऊपर natural numbers, whole numbers, fractions, integers, that means rational और irrational दोनों numbers आते हैं. So this is a false statement. And the next one is every real number is irrational. Every real number irrational हो ही नहीं सकता, क्योंकि real number की फैमिली में दो तरह के numbers होते हैं, rational और irrational. कुछ तो rational होंगे और कुछ irrational होंगे, तो सारे number irrational नहीं हो सकते. This is a false statement. Next is, are the square roots of all positive integers irrational? आप बताएंगे मुझे, अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालेंगे तो क्या मिलेगा? दैट इज 2. और अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 9 निकालेंगे, व्हाट डू यू गेट? दैट इज 3. तो ये नंबर्स इरेशनल नहीं हैं. सो द आंसर इज नो, बिकॉज some of those numbers are rational and some of those numbers are irrational. If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. तो हमने यहाँ example दे दिया. Square root 16 ले सकते हैं, square root 16 4 होता है, square root 25 ले सकते हैं, that's equal to 5. तो ऐसे बहुत सारे numbers हैं जो number line पर exist करते हैं और उनका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता. नाउ वी मूव फर्दर एंड वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ आपको क्वेश्चन मिला है रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो जब आप स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, वेरी इजी एक्टिविटी. जैसे हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, और अगर हम रिकॉल करते हैं, स्क्वायर रूट 2 बनाते टाइम यहाँ 0 से स्टार्ट किया था और 1 यूनिट लिया था. अब स्क्वायर रूट 5 बनाना है, सो यू आर गोइंग टू टेक 2 यूनिट्स और यहाँ पर A पॉइंट लिखा, राइट? अब इस A पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 यूनिट का, तो ये पूरी लेंथ हो गई 2 और ये पूरी लेंथ हो गई 1 एंड इसको हमने B पॉइंट से रिप्रेजेंट किया. अब OB कितना होगा उसको हमने टेस्ट करना है. सो OB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. ये 2 स्क्वायर है, 1 प्लस 1, तो इसको हमने 2 स्क्वायर लिखा एंड दिस इज 1. सो वी राइट डाउन OB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का मतलब 4 प्लस 1 और आपको मिल गया स्क्वायर रूट 5. अब इस पॉइंट को हमने रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो रियल नंबर लाइन पर आने के लिए आपने कंपास को यहाँ रखना है, अपनी पेंसिल को पॉइंट B पर रखना है और उसको स्लोली स्लोली ड्रैग करके
हम इस नंबर लाइन पर ले आएंगे एंड दिस बिकम्स अ पॉइंट. हमने पॉइंट सी लिखा एंड फर्दर विल राइट OB is equal to OC dash equal to square root of 5. Understood? Very interesting and very easy. Now we have a classroom activity. हम इस classroom activity को करेंगे. Here you are going to construct a square root spiral. कैसे बनाएंगे? एक हमने बहुत बड़ी सी पेपर लिया, एक प्लेन पेपर लिया and here we are going to take point O. इस पॉइंट O पर हमने एक लाइन ड्रॉ की OP, दैट वी हैव टेकन एज 1 यूनिट. OP से OP के परपेंडिकुलर 1 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ कर दी एंड यहाँ पर ये वाली जो लाइन बनेगी दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2. नेक्स्ट स्टेप, अब इस लाइन को बेस मानकर इसके परपेंडिकुलर 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ करेंगे. राइट और इस पॉइंट से यहां पर पॉइंट 3 पर ज्वाइन कर दिया. तो पॉइंट 3 पर ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन बनेगी दैट विल बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. सो वी गेट इट एज स्क्वायर रूट 3. इसी तरह से अब इस लाइन को OP3 को बेस मानकर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का एंड इस 1 यूनिट का पॉइंट आ जाएगा P4 और P4 को O से ज्वाइन किया तो ये मिलेगा आपको स्क्वायर रूट 4 विच इज इक्वल टू 2. एंड दिस वे यू कैन ग्रो योर स्पाइरल. और ये स्पाइरल आपके डिफरेंट अंडर रूट स्क्वायर रूट के नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा. बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी. आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट एंड आई बिलीव आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया और कहानी अभी बाकी है. सो स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट हेजिटेट टू आस्क योर प्रॉब्लम्स. EduVibe is always there to help you.